Hello students, this is Hardik sir, and in this video we will be starting our chapter 5 of history, when people rebel 1857 and after. So in this part particularly, this is the part 1 of the lesson. So in this part you will be studying about the revolt of 1857. There were number of reasons because of that the people rebelled against the Raj. The word Raj wants to denote you with the British Raj, because as you know, we have studied in the previous lessons that India was a colony of British, and because of that ultimately it exploited the resources of India for the development of England. And now the people were fed up of these all policies, and now they wanted their own rule, means the complete rule of India. And because of that only the rebel started. So in this video we are going to start with the introduction of the lesson, and we will be completing just up to the responses to reforms. So from mutiny you will be seeing in the part 2. So as we start with the lesson, so towards the lesson first, on your page number 51 in your textbook, I am damn sure that you will have your textbook with you, so that at least you can find some more other information as I will be guiding you during the video. So when East India Company established power in India, it affected the life of Indian kings, queens, landlords, peasants, tribals and soldiers in many ways. It means after the establishment of company's power, the power of British, there were number of changes in the country, and those changes actually affected the lives of many people, as we are given that the lives of kings, queens, landlords, peasants, tribals and soldiers was affected. There were number of changes in their lives. So many of them revolted against the policies that were enforced by the British. सो ब्रिटिश की जो भी ऐसी पॉलिसी, ऐसे लॉ वगैरह इन्फोर्स कर दिए गए थे, जिसके खिलाफ यहाँ एक आवाज़ उठाई गई इन द ईयर 1857, जिसे इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जिसे सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है. ये सब हम आगे देखने वाले हैं. सो द नवाब्स हु रूल्ड द लैंड टिल देन स्लोली लॉस्ट ऑल देयर पावर. यानी नवाब आपको पता ही आगे हमने देखे हैं. So emperor had appointed nawabs for certain areas, as India was under different nawabs. We can say the emperor was from Mughal dynasty, but the nawabs now started losing their power because now British were slowly and gradually interrupting or entering into the politics of the country. So the nawabs and the rajas lost all their authority and honor. स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके हाथ से पावर जा रहा था, उनकी अथॉरिटी जा रही थी, मान सम्मान अब धीरे धीरे कम हो रहा था. ब्रिटिश रेसिडेंट्स वर स्टेशनड इन ऑल दी कोर्ट्स. स्टेशनड ये कहना चाहता है कि अल्टीमेटली ब्रिटिश के अपॉइंट किए हुए मेंबर्स जो कि हर एक राजा की कोर्ट में अब मौजूद थे. एंड वाई दे वर प्रेजेंट ओवर देयर इन द कोर्ट्स? सो दे वर प्रेजेंट इन द कोर्ट्स टू मॉनिटर द प्रोसीडिंग्स. यानी राजा की हर एक हरकत पे अब उनकी निगाह थी, thus undermining the authority of the Nawab. So you can understand these all ultimately reduced the power of Nawab. यानी अब नवाब के हाथों से धीरे धीरे उसके पावर कम होते वो खुद देख रहे थे. नवाब की जो आर्मीज़ थी उन्हें भी डिसबैंड यानी कि कर दिया गया था बंद. अब वो भी अपने आप डिसीशंस नहीं ले सकते थे वेदर टू स्टार्ट अ वॉर और टू साइन अ पीस ट्रीटी. एंड द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स वॉज ऑल्सो रिड्यूस्ड. अब रूलर्स के पास जैसे कि कोई आज़ादी रही ही नहीं थी. रेवेन्यू जो भी कलेक्ट किया जाता था बाय द नवाब्स, दैट वाज आल्सो टेकन बाय ब्रिटिश एंड द टेरिटरीज वर आल्सो सीज्ड. तो अब नवाब के पास रेवेन्यू का इनकम भी धीरे धीरे कम हो चला था. जैसा आप देखेंगे इन द प्रीवियस लेसन आल्सो वी हैव सीन अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी एंड हाउ द दीवानी ऑफ बंगाल वाज गिवन टू द नवाब्स. So sorry, not to Nawab, to the British. So ultimately this is how we have seen that there were a number of changes, and that definitely affected the lives of many people, as we have seen already. Okay, so now let us move to the next part. Many ruling families, they tried to negotiate with the company. यानी कि उन्होंने कुछ negotiate करने का कोशिश किया है
ओके, मीन्स सम ऑफ द प्रिविलेजेस शुड बी गिवन टू देम ऑल्सो। और ये सब के सब अपने इंटरेस्ट के लिए जो उन्होंने किया, पर हालांकि कंपनी ने इनमें से एक भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी नहीं किया है। जैसा आपको पता ही है, वी हैव द एग्जांपल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। सो इन द केस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, शी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। यानी उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनका जो अडॉप्टेड सन था वो वारिस बनना चाहिए। ही शुड बी द नेक्स्ट किंग, ही शुड बी द सक्सेसर ऑफ द किंगडम ऑफ झांसी। पर ये इंटरेस्ट वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड वी नो दैट रानी लक्ष्मीबाई वॉज किल्ड इन द बैटल फील्ड इटसेल्फ। नाना साहेब हु वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड, जो अडॉप्टेड सन थे, और जब पेशवा बाजीराव सेकेंड की डेथ होती है, आफ्टर दैट नाना साहेब रिक्वेस्टेड, ही प्लीडेड, ही परसुएडेड विद द ब्रिटिश कंपनी टू गिव हिम हिज फादर्स पेंशन। यानी एक सर्टेन अमाउंट जो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पेशवा बाजीराव सेकेंड को दिया जाता था, जो अब उन्हें देना बंद कर दिया गया था बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। सो ही रिक्वेस्टेड टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू कंटिन्यू विद द पेंशन, बट द ब्रिटिश रेफ्यूज्ड टू डू सो, क्योंकि उन्हें पता था अगर नाना साहेब अगर रिवॉल्ट करते हैं तो दे हैड मिलिट्री पावर टू डिफीट नाना साहेब। यानी ब्रिटिश के पास इतना मिलिट्री पावर मौजूद था कि वो नाना साहेब को डिफीट कर सकते थे। इन 1801 1801 में सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज किया गया बाय गवर्नर जनरल डेलहाउसी। सब्सिडियरी अलायंस के अकॉर्डिंगली द रूलर वॉज गिवन विद द सब्सिडियरी आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि एक आर्मी दी जाती थी, और सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करने के बाद रूलर अपने आप कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं कर सकते थे, ना ही किसी वॉर को वो सीज कर सकते थे। यानी दोज ऑल राइट्स वर विद द ब्रिटिश नाउ। डेलहाउसी ने ये डिक्लेयर किया था दैट द स्टेट वॉज बीइंग मिसगवर्नड, एज यू कैन सी। सो द स्टेट ऑफ अवध वॉज बीइंग मिसगवर्नड by Nawab Wajid Ali Shah and imposed a British rule for a proper administration. So on the pretext of, we can say that on the pretext of improper administration, yani to run the administration in an efficient way, the Awadh was annexed by British. In 1856, Awadh was taken over by British. It was one of the last territories to be annexed by the British. यानी one of the last territories, यानी लास्ट में यही टेरिटरीज थी जो अभी तक ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थी, पर अल्टीमेटली अब ये भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुकी थी। बादशाह जफ़र सेकेंड वॉज द लास्ट ऑफ द मुग़ल एम्परर्स। सो आपको पता ही है लास्ट मुग़ल एम्परर बादशाह जफ़र थे। इन 1849 गवर्नर जनरल डेलहाउसी अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बादशाह जफ़र, सो मुग़ल एम्परर की डेथ के बाद उनका जो फैमिली है, द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस टू लिव इन दिल्ली। यानी कि अब वो उसी जगह पे रेड फोर्ट पे नहीं रह पाएंगे। इन 1857 आफ्टर द डेथ ऑफ बादशाह जफ़र, गवर्नर जनरल कैनिंग ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि उनके डिसेंडेंट्स जो उनके बाद राजगादी संभालने वाले हैं वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स, यानी अब उनके सक्सेसर कोई होगे ही नहीं, बट दे वुड बी ओनली नोन एज द प्रिंसेस, और उन्हें सिर्फ प्रिंसेस से जाना जाएगा। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो किंग थे, उनके बेटे जो नेक्स्ट किंग बनने वाले थे, उन्हें नया मौका नहीं दिया जा रहा है, उनके सक्सेसर को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही थी, यानी उनका पावर, उनकी अथॉरिटी, ऑनर धीरे धीरे कम हो रहा है। यू कैन सी दैट the slowly but decisively the power of all the nawabs were taken by the British. So ultimately धीरे धीरे ही सही, पर ये सभी नवाब के पावर ब्रिटिश के द्वारा ले लिए गए थे। As we can see on the page number 51 itself, nawabs lose their power. So you will find it the first subtitle of the lesson. So since the mid 18th century, the power of nawabs and rajas had been eroding slowly and gradually. ये powers कम हो रहे थे। The authority and the honor which they earlier commanded were gradually waning away.
वर बीइंग इलोप्ड, धीरे धीरे वो गायब हो रही थी। दिख रहा था सबको कि धीरे धीरे उनके पावर कम होते जा रहे हैं। द ब्रिटिश हैड अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन मैनी कोर्ट्स एज वी हैव सीन, ताकि वो पूरा प्रोसीडिंग्स का ध्यान रख सके। द फ्रीडम ऑफ द इंडियन रूलर्स वॉज रेड्यूस्ड, और उनकी आर्मी को भी डिसबैंड कर दिया गया था। द कंपनी ऑल्सो टुक अवे देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज इन स्टेजेस, स्लोली एंड ग्रेजुअली। उनके रेवेन्यूज़ और धीरे धीरे उनकी टेरिटरीज़ भी अब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुकी थी। नेक्स्ट यू कैन सी फेल्ड नेगोशिएशंस ऑफ रूलिंग फैमिलीज। सो द सेम यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 52 एंड 53। यहाँ जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको अभी 52 और 53 पे हर एक चीज़ें दिखने वाली है। सो मैनी रूलिंग फैमिलीज़, जिन्होंने कोशिश की कि वो कंपनी से, हमने अभी डिस्कस किया, दे वांटेड कुछ प्रिविलेजेस उन्हें भी मिल जाए, बट दे फेल्ड, यानी उनकी कोई भी ऐसी नेगोशिएशन, उनकी कोई भी प्रिविलेजेस जो फुलफ़िल की नहीं गई। एज वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, जिनके हस्बैंड के डेथ के बाद आपने देखा उनके अडॉप्टेड सन को नेक्स्ट राजा नहीं बनने दिया गया। नाना साहेब, जिन्हें बाजीराव सेकेंड के अडॉप्टेड सन थे, ही वॉज ऑल्सो नॉट गिवन द पेंशन विच वॉज रिसीव्ड बाय हिज फादर, बट द कंपनी ऑलवेज टर्न डाउन सच रिक्वेस्ट। और ऐसी हर एक रिक्वेस्ट को कंपनी ने टर्न डाउन यानी कि खारिज कर दिया था, और कंपनी ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट को फुलफ़िल नहीं किया है। हियर यू कैन ऑल्सो फाइंड द पिक्चर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इन द बैटल फील्ड, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एज यू कैन सी द टाइटल ऑल्सो। एनेक्सेशन ऑफ अवध, जैसा आपने अभी देखा कि अवध का एनेक्सेशन कैसे हुआ था, सो हमने बराबर देख लिया कि सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया गया था अवध में इन 1801 एंड इट वाज फुल्ली टेकन ओवर इन 1856 ऑन द प्री टेक्स्ट ऑफ मिस रूल मिस गवर्नेंस बाय द नवाब, यानी कि नवाब उसे प्रॉपर वे में गवर्न नहीं कर रहे थे। ये बात कह के ब्रिटिश ने अवध को भी एनेक्स कर लिया गया था। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मिस रूल बाय द नवाब वॉज गिवन एज द रीज़न, तो ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया रीज़न था अवध को एनेक्स करने के लिए। यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं दैट इज़ द नवाब ऑफ वाजिद अली शाह, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट यू कैन फाइंड द प्लान्स टू एंड द मुग़ल डायनेस्टी। सो जैसा हमने आगे भी देख लिया है कि ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया था दैट द डिसेंडेंट्स ऑफ द मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र were not be known as the kings and they would only be known as the princes. The company has now the plans to end the Mughal dynasty also. The company was also working on its plan to bring the Mughal dynasty to an end. It removed the name of the Mughal king from the coins. It's not a process which is done overnight. Slowly and gradually the name of the Mughal king also started being removed from the coins. इन 1849, जैसा आप वापस देख रहे हैं, दोनों चीज़ें जैसी आपको पहले भी बताई गई थी कि जनरल डेलहाउसी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद उनके जो भी डिसेंडेंट्स है वो, उनका फैमिली रेड फोर्ट में नहीं रह पाएगा और उन्हें दिल्ली में कोई और जगह दी जाएगी। गवर्नर जनरल कैनिंग 1856 में उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया था कि उनके बाद कोई किंग नहीं रहेगा, ही वुड बी द लास्ट मुग़ल किंग, और उनके नेक्स्ट डिसेंडेंट्स वुड बी नोन एज द प्रिंसेस ओनली। यहाँ आप दोनों जो चेहरे देख रहे हैं दे वर द सन्स ऑफ द बहादुर शाह जफ़र। नाउ द peasant एंड द सिपॉइस, एज यू विल फाइंड द सेम पिक्चर ऑन पेज नंबर 53 इटसेल्फ। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं फिगर 2 दैट सिपॉइस आर एक्सचेंजिंग न्यूज़ एंड रूमर्स इन द बाज़ार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो नाउ एज वी हैव द सिपॉइस एंड द peasants, we are going to see the part the peasants were not happy with the high taxes, यानी हमने देखा कि लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही थी, तो ये फार्मर्स की ज़िंदगी भी नहीं रह गई थी, बाकी वहाँ पे भी बदलाव थे बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेस। धीरे धीरे वो भी खफा हो रहे थे। दे वर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश, और जो रिजिड मेथड थे, यानी कि दे वर नॉट फ्लेक्सिबल मेथड्स, वेरी स्ट्रिक्ट मेथड से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, जो इन्हें पसंद नहीं था। मैनी पेसेंट्स हैड लॉस्ट द लैंड्स दे हैड बीन टिलिंग फॉर जनरेशंस, जो जनरेशंस पीढ़ियों से जिन लैंड के ऊपर टिलिंग कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, अब क्योंकि वो उनके लोन्स रीपे नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे उनकी वो ज़मीन भी उनसे छीन ली गई।
क्योंकि टैक्सेस काफ़ी हाई थे और वो नहीं भरने की वजह से उन्हें लोन लेना पड़ता था। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन दे वर नॉट एबल टू रीपे द लोन, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी ज़मीन भी उनसे छीन ली गई। इंडियन सिपाहीज वर ऑल्सो नॉट हैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। सो जो रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, यानी कि उन्हें जो पेमेंट किया जाता था, जो अलाउंसेस उन्हें दिए जाते थे, एक्स्ट्रा पेमेंट्स, वो कहीं ना कहीं वो भी उतने लेवल पे नहीं थे जितने ब्रिटिश सिपाही सोल्जर्स को मिलते थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स वायोलेटेड देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड बिलीफ्स। सो कुछ ऐसे नए रूल्स भी आगे देखने मिलेंगे हमें, जिनकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को कहीं चोट पहुंचाई गई थी बाय द ब्रिटिश। यहाँ आप देख रहे हैं टाइटल, दैट इज़ बिलीफ अगेंस्ट सी वॉयज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो ये कहानी है समथिंग अबाउट दी बिलीफ, जैसा टाइटल में ही दिया है कि अगर ओवर सी इफ़ समबडी इज़ क्रॉसिंग द सी, दैट मीन्स they would lose their religion. The Hindus believed that crossing the sea, तो यानी अगर कोई समंदर पार जाता है तो वो अपना रिलीजन लूज़ कर देता है और अपनी कास्ट भी लूज़ कर देता है। इन 1824 ऐसा हादसा हुआ कि जब सिपॉय को, जितने भी ऐसे सैनिक थे, दे वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी। सो उन्हें सी रूट से बर्मा जाना था, बट द सिपॉयज रेफ्यूज्ड टू फॉलो द ऑर्डर, क्योंकि आप देख रहे हैं ये बिलीफ था उनके पीछे। सो इसीलिए उन्होंने इस ऑर्डर को फॉलो करने से मना किया, बट दे अग्रीड टू गो बाय लैंड रूट। लैंड रूट से जाने को वो तैयार थे। एंड फॉर दिस सिपॉयज वर सीवियरली पनिश्ड। तो जिन्होंने मना किया उन्हें काफ़ी कड़ी सज़ा दी गई। एंड द कंपनी पास द न्यू लॉ इन 1856, और अल्टीमेटली 1856 में एक और नया लॉ आ जाता है। और इस लॉ के हिसाब से, जैसा हमने देखा आगे, कि कुछ ऐसे नए लॉ बनाए गए थे जिनसे ये सिपॉयज काफ़ी खफा थे। द न्यू लॉ मेड इट मैंडेटरी फॉर अ सिपॉय टू अग्री टू सर्व ओवरसीज इफ़ रिक्वायर्ड, यानी ज़रूरत पड़ने पे उन्हें समंदर पार भी जाना पड़ेगा अपनी सर्विस पे करने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए। तो ये जो चीज़ें, ये बदलाव थी, इससे ये सिपॉयज सेटिस्फाइड नहीं थे, इससे खुश नहीं थे। मोस्ट ऑफ द सिपॉयज वर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, they had families living in the villages, so they also reacted to what was happening in the countryside, क्योंकि कंट्री साइड से उनको विलेजेस से इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि किस तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है और कैसे हालात है देश में, तो इससे भी वो रिएक्ट करते थे। और यही सब चीज़ें थी अल्टीमेटली जो सिपॉय म्यूटिनी को तैयार कर रही थी। तो हम वो हिस्सा तो वैसे भी पार्ट 2 में देखने वाले हैं, पर ये जो भी रिफॉर्म्स लाए गए बाय द ब्रिटिश, जैसा आप पेज नंबर 53 पे टाइटल देख रहे हैं, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, बराबर फिगर 2 के बाजू में आपको ये टाइटल दिख रहा है। द ब्रिटिश टुक सेवरल स्टेप्स टू रीफॉर्म द सोसाइटी इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस। कुछ बदलाव लाने के लिए नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। तो वो रिफॉर्म्स के तहत यहाँ बदलाव आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, न्यू लॉज वर पास्ड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। सो सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने ही लॉ पास किया कि ये प्रैक्टिस नहीं होगा। अ लॉ वॉज ऑल्सो पास्ड टू एनकरेज वीडो री मैरिज। देयर वॉज अनदर लॉ दैट वॉज ऑल्सो पास्ड। तो ये आप देख सकते हैं कुछ बदलाव, सोसाइटी में अच्छे बदलाव भी यहाँ देखने मिलते हैं। द कंपनी ऑफिशियली प्रमोटेड द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ अब ऑफिशियली धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज अपना मोमेंटम, अपना इम्पोर्टेंस गेन कर रहा था। आफ्टर 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली एंड दे कुड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। सो दे वर ऑल्सो, नाउ क्रिश्चियन मिशनरीज वर ऑल्सो गिवन अपॉर्चुनिटी टू ओन द लैंड इन इंडिया। वो इंडिया में अपना लैंड प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और अपने फंक्शंस फ्रीली फॉलो कर सकते हैं। जैसा आप अब देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन 1850 एक नया लॉ ऐसा बनाया गया जो इंडियन को हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, अगर वो कन्वर्ट होते हैं तो प्रॉपर्टी को इनहेरिट अगर करना है उन्हें, जो उनके ही प्रॉपर्टी है, उनके फादर से या फोर फादर से जो भी उन्हें मिल रही है विरासत, सो वो आसान हो जाएगी अगर वो कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी में। सो दिस लॉ मेड इट ईजियर टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, यानी लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस लॉ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अ फीलिंग
was developing among most of the Indians, that the British were trying to destroy their religion, their social customs and their traditional way of life. यानी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली द ब्रिटिशर्स आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन. यानी बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस यू कैन फाइंड टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, इन्होंने जो रास्ता निकाला था अल्टीमेटली, इससे कुछ लोग खफा थे. उन्हें अपने सोशल कस्टम्स, फॉर एन एग्जांपल दिस प्रैक्टिस ऑफ सती और विडो रीमैरिज, जो अलाउड सती का प्रैक्टिस हो रहा था और विडो रीमैरिज नहीं हो रहे थे, और इन दोनों को इन्होंने पास कर दिया. विडो रीमैरिज को पास किया और सती को बैन कर दिया गया. तो ये उन्हें कस्टम से अलग लग रहा था, उनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से अलग लग रहा था. हाउएवर देयर वर सम अदर्स, कुछ थे जो चाहते थे कि नहीं, जो भी ये कस्टम्स सोशल ईवल्स है हमारी सोसाइटी के, ये बदलाव ज़रूरी है और ये ज़रूरी थे कि ये होने ही चाहिए थे. नाउ यू विल फाइंड द टाइटल म्यूटिनी टू पॉपुलर रिबेलियन, जो आपको दिखेगा पेज नंबर 55 पे. बट दिस पार्ट वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द पार्ट सेकेंड. सो टिल देन आपको रिक्वेस्ट है कि आप पूरा लेसन एक बार ध्यान से पढ़ें. यहाँ तक अगर कोई डाउट क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें. और बिफोर वॉचिंग पार्ट 2 ऑल्सो कंप्लीट द रीडिंग of entire lesson. Till then, keep learning. Thank you.